Good morning, everyone. Good morning, Good sir. morning, sir. Kia. Dear students, today we will discussing this concept of power and authority as a part of this unit number 3 of sociological theories, name of the course. And today we are discussing, or we will discuss rather, the classification which has been given by this French and Raven way back in 1959 in his classical study which he did during his research. And in that study, thou whatever the type of the basis of power from where we can have power, that is not given by this Max Weber, but for your convenience and for your better understanding about the concept of power and authority, I think it should be discussed what does these 5 most important terms mean, because these terms will help you a lot while discussing or describing the types of power and authority in incoming lecture. So as I already said yesterday that there are 5 different sources of power which has been given by French Raven. There are 2 scholars who did research in his classical study now 1959, and number 1 was this Lestimé's power, number 2 was coercive power, number 3 was reward power, number 4 was expert power, and number 5 was referent power. So I will discuss with you all one by one all these 5 bases of power, from where rather on the basis of which power typology of power has been established rather by this Max Weber. So first of all, legitimate power. Legitimate power simply mean ये जो power है, ये it arises कहाँ से निकलती है? Arise from the position derived from cultural system of rights and obligation. Cultural system of rights and obligation, duties whereby position is being expected either by custom, by society, or by the legitimate institution. Legitimate institution means it can be any organization, it can be any institution owned by government, run by government, or owned by some society, run by that society, or sanctioned by society, controlled by society. So कहने का सिंपल शब्दों में अर्थ क्या हो गया कि जो लेजिटिमेट पावर होती है, ये समाज में विद्यमान जो कल्चरल सिस्टम है, वो सिस्टम जिसमें कि राइट्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, ड्यूटीज हैं, और उनकी वजह से चाहे वो किसी संस्थागत या जो समितियां होती हैं, एसोसिएशंस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसके द्वारा या गवर्नमेंट के कोई भी गवर्नमेंट ओन्ड और गवर्नमेंट रनिंग सिस्टम के द्वारा जो भी आदेश दिया जाएगा, जो भी पावर होगी, उसे लेजिटिमेट करने की कोशिश की जाती है। लेजिटिमेट माने उसे वैधानिक बनाने की कोशिश जब की जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? लेजिटिमेट पावर बोलते हैं। इन प्राइवेट बिजनेस की बात करते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं, या प्राइवेट कोई भी दुकान की बात कर लें, इवन हम उसमें भी अगर कोई मुलाजिम किसी ने रखे हैं, एम्प्लॉय रखे हैं, तो इट मींस दे आर आल्सो हैविंग सम अथॉरिटी। उनके पास भी कुछ ना कुछ पावर है, और उस पावर को वो एक्सरसाइज करते हैं बाय बीइंग द ऑनर ऑफ दैट वेरी एंटरप्रेन्योर और एंटरप्राइजेस। सो कहने का सिर्फ अर्थ ये हो गया कि जो प्राइवेट बिजनेस है उसमें भी अथॉरिटी जो पोजीशन है, दैट इज आल्सो बीइंग गिवन बाय द ऑनर ऑफ दैट वेरी इंस्टीट्यूशन, दैट एंड द सोशल इंस्टीट्यूशन इज प्राइवेट प्रॉपर्टी। सोशल इंस्टीट्यूशन क्या हो गया वहां? प्राइवेट प्रॉपर्टी, बिकॉज दैट प्राइवेट प्रॉपर्टी इज बीइंग एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी एट लार्ज। समाज उसे बड़े लेवल पर उस प्राइवेट प्रॉपर्टी को स्वीकृति देता है, स्वीकार करता है। जो स्वीकार करेगा तब वो वैधानिक बन जाती है। इस तरह से गवर्नमेंट सिस्टम में अगर हम देखें
In government system, the authority rises basically from the institution of representative government. Representative government rather सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी भी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करता है तो वो दैट विल बी द पावर। ठीक है, तो जैसे छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि हिमाचल सरकार के शिक्षा विभाग ने चंबा जैसा कॉलेज जो है ऐसे 135 कॉलेजेस खोले हुए हैं जिसमें बच्चों को हायर एजुकेशन दी जाती है। यूनिवर्सिटीज खोली हुई हैं जिसमें बच्चों को हायर एजुकेशन दी जाती है। अब जो कॉलेजेस में है, कॉलेज में प्रिंसिपल को एक अथॉरिटी के रूप में बिठाया है कि वो कॉलेज का संचालन करेगा, जो सरकार के जो नियम कानून है उनकी अनुपालना करवाएगा। ठीक है, और टीचर से ये अपेक्षा की जाती है कि जो उस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए अध्यापन का कार्य संपन्न करवाएगा। टीचर्स आर सपोज टू टीच द स्टूडेंट ऑफ देयर सब्जेक्ट, जो उनके सब्जेक्ट हैं उनको वो करेगा। क्लर्क इज सपोज टू डू एवरीथिंग फॉर स्टूडेंट्स एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट। प्रिंसिपल के थ्रू वो सारी पीएन जो क्लास 4 होते हैं they are supposed to assist principal to maintain that very institution. So ये सारा का सारा जो ताना और बाना बना हो जो सारा सिस्टम है, ये सिस्टम it comes under legitimate power। ठीक है, नंबर 2 क्या है? कोरेसिव पावर। कोरेसिव पावर का मतलब होता है लेजिटिमेटिव पावर होता है वैधानिक शक्ति, और यहाँ क्या होगा? कोरेसिव में दबाव मूलक, इसमें दबाव रहता है। दबाव कहाँ रहते रहेगा? प्रेशर जिसमें रहता है। और दबाव मूल्य का मतलब क्या हो जाता है? इट इज पर्सन्स एबिलिटी आई मीन कि एक व्यक्ति विशेष की योग्यता है इसमें। पर्सन्स एबिलिटी टू क्रिएट फियर टू अनदर इंडिविजुअल, ये व्यक्ति विशेष की अपनी एबिलिटी है कि दूसरों के लिए वो फियर को क्रिएट करे, भय का माहौल बना दे। जैसे दाऊद, जैसे ओसामा बिन लादेन, जैसे आतंकवादी कोई, और आपके गांव में कोई गुंडा वो एक फियर क्रिएट कर दे, और फियर क्रिएट करने के बाद एंड एबिलिटी टू क्रिएट फियर फॉर अनदर पर्सन which is based on subordinates। उसमें क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? subordinates expectations to be punished, कि अगर मैंने इसकी बात को नहीं माना तो मुझे गोली मार देगा या मुझे पीटेगा, इस तरह का फियर जो क्रिएट कर देगा। और उसके बाद फिर क्या होगा कि जो नहीं चाहता है कि मैं इसकी बात को एग्री करूं, उसके बाद भी उसे उसकी बात को एग्री करना पड़ता है। I'm repeating, it is person's ability, ये व्यक्ति विशेष की एबिलिटी है टू क्रिएट अ फियर, या फियर का माहौल ऐसा खड़ा कर देना, क्रिएट कर देना, या उस व्यक्ति विशेष के लिए ही ऐसा माहौल खड़ा कर देना जिससे वो डर जाए और दबाव आए। और दबाव आने के बाद जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं अदर देन दैट वेरी पर्सन हु इज क्रिएटिंग द फियर, वो काम कर दें, वो काम करें, पनिशमेंट का डर उनके दिमाग में रहे, अगर मैंने नहीं किया तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। जैसे राधे मूवी, अगर आपको याद, राधे नहीं वो तेरे नाम मूवी अगर आपको याद हो, उसमें राधे जो क्रिएट करता है और वो जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जाता है, उसे क्लर्क को जो मारता है, तो वो क्या है? दैट इज फियर। राधे भैया आगे जानता तो कौन हूं मैं? राधे भैया, डॉन भाई। तो ये जो इस तरह का एक फियर क्रिएट कर देना, और फियर क्रिएट करने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा? सिंपली शब्दों में क्या हो जाएगा कि अगर मैंने इसकी बात को नहीं माना तो मुझे इसकी पनिशमेंट मिलेगी। दैट इज कोरेसिव पावर। ठीक है, इसमें क्या होगा? फियर क्रिएट करना। पहले में क्या था कि लेजिटिमेट करना, जो उसको राइट एंड ड्यूटी उसकी है, या तो उसको कल्चरल सिस्टम उसको अलाउ करता है, या तो सोशल सिस्टम करेगा, या गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसको अलाउ करता है टू जस्टिलाइज टू डू द वर्क। ठीक है, नंबर 3 जो है रिवार्ड पावर। रिवार्ड मैंने पुरस्कार से संबंधित शक्ति जो है ये कैसे मिलेगी? इट इज जस्ट ऑपोजिट टू कोरेसिव पावर। ये कोरेसिव पावर के बिल्कुल ऑपोजिट है, वहां डराना है। और यहाँ क्या करना है? इट राइजेस फ्रॉम द एबिलिटी ऑफ समवन टू ग्रांट रिवार्ड। एबिलिटी, एक व्यक्ति विशेष के अंदर एक ऐसी रिवार्ड रादर एबिलिटी, उसकी योग्यता को असेस करना। छोटा सा एग्जांपल, और इसमें क्या होगा?
purchasing agent with little position of power and might be exercised in a considerable influence by the ability to expedite the things. चीजों को तुरंत करना या ज्यादा तरीके से करने के लिए जब रिवार्ड वाली जो चीज होगी तो मैं आपको पुरस्कार दूंगा क्योंकि आपके अंदर ये एबिलिटी है। राष्ट्रीय शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार, एक शिक्षक अच्छा शिक्षक जो है उसे राष्ट्र के लेवल पर एक पुरस्कार मिलना, अवार्ड मिलना, दैट इज रिवार्ड पावर। तो इसमें रिवार्ड में क्या हो जाता है कि इसमें सिंपल शब्दों में लोग जो हैं मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल आपको देने लगा हूं, जैसे नेट क्वालिफाई कोई करता है, नेट इज कंपल्सरी टू बी ए टीचर इन कॉलेज और इन यूनिवर्सिटी कॉलेज में अगर आपको टीचर बनना है हमारी तरह तो आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। एक ये हो गया। जैसे आप इसको करोगे, ओनली आफ्टर क्वालिफाइंग दिस कंपल्सरी एग्जामिनेशन यू कैन बी ए टीचर। तो टीचर जो बनना है दैट विल बी रिवार्ड। तो आपकी एबिलिटी जो पूरे हिंदुस्तान में लाखों के हिसाब से लोग अप्लाई करते हैं और उसमें हजारों के हिसाब से क्वालिफाई होते हैं, हजारों में रादर सैकड़ों में क्वालिफाई होते हैं, कई बार तो कट ऑफ होती है, उसके बाद वो सारी चीजें रहती हैं और उसमें कुछ एक परसेंट जो है उसमें JRF निकलते हैं जिसको जूनियर रिसर्च फेलो कहते हैं हम, उनको फेलोशिप मिलती है और फेलोशिप जो है वो पर मंथ उनको 36,000 रुपीज जो है वो सरकार उनको अवार्ड देती है, सरकार उनको रिवार्ड देती है, पुरस्कार देती है सरकार। 36,000 पर मंथ। कहने का मतलब क्या हो गया, दैट रिवार्ड इज कमिंग बिकॉज ऑफ द एबिलिटी ऑफ दैट पर्सन हु जस्ट पास दैट क्वालिफिकेशन और दैट वेरी एग्जामिनेशन। कहने का तात्पर्य सिंपल शब्दों में क्या हो जाता है कि इस तरह से वो जो उसके साथ जो पावर जो उसके साथ अटैच होगी, उसके साथ पावर के साथ रिवार्ड के साथ पावर अटैच होगी, दैट मीन्स अ लॉट and that definitely put that person to high grade as compared to other people of society. लोगों के जो दूसरे लोग हैं उनके मुकाबले उनकी जो पावर है वो ज्यादा हो जाती है। तो उस तरह से देखने की कोशिश करें। उसके बाद कॉलेज में वो प्रोफेसर बन सकता है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकता है या किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाके वो ही कैन सर्व और शी कैन सर्व। तो इस तरह से उनको सारे के सारे हाई ग्रेड, इज्जत भी, पैसा भी, नाम भी और जैसे मर्जी अपना जीवन जीना चाहे वो जी सकता है। बट फॉर दैट मैटर वन हैज टू क्रिएट एबिलिटी ओनली देन इट कुड बी। पहले में क्या था, लेजिटिमेसी थी, जो ड्यूटीज मिली होती हैं। दूसरे में कोरिजन था, दबाव था, डर था। तीसरे में क्या है, एबिलिटी है। अब चौथे में देखते हैं क्या है। चौथे में एक्सपर्ट पावर है। एक्सपर्ट मैंने कि जो बंदा बिल्कुल एक्सपर्ट होगा और उसकी अपनी ही पावर होती है। जो एक्सपर्ट को ढूंढते हैं हम, मान लीजिए मेरे घर का फ्यूज चला गया तो मैं इलेक्ट्रिशियन को ढूंढूंगा, बिकॉज इलेक्ट्रिशियन इज एन एक्सपर्ट ऑफ मेंडिंग द थिंग्स। मेरे कंप्यूटर में जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस हार्डवेयर में कोई दिक्कत आ गई तो मैं इसके इंजीनियर को ढूंढूंगा। तो दैट इज आई एम लुकिंग फॉर सम एक्सपर्ट बिकॉज दैट पर्सन इज हैविंग पावर टू मेंड इट। उसके पास पावर है इसको चलाने की, उसको ठीक करने की, सिर्फ उसके पास पावर है एंड आई कांट डू इट। जैसे ही हम बीमार हो जाते हैं हम डॉक्टर को ढूंढते हैं बिकॉज डॉक्टर हैज पावर टू ट्रीट। डॉक्टर के पास पावर है कि वो हमें ट्रीट कर सकता है क्योंकि वो मेडिकल ग्रेजुएट है। ही इज नोइंग एवरी सॉल्यूशन टू माय अलाइनमेंट। जो मैं बीमार हुआ हूं उसका सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ उसी के पास है एंड दैट पावर इज वेस्टेड विद हिम। वो एक्सपर्ट पावर है और वो उस पे एक्सपर्ट पावर में नॉलेज, स्किल और एक्सपर्टीज की बात यहाँ की जाती है। नंबर 1 नॉलेज, नंबर 2 स्किल और नंबर 3 एक्सपर्टीज की बात इसमें की जाती है। नॉलेज, MBBS बन गया बंदा, सिंपल, ठीक है। नॉलेज में जैसे MA कर लिया बंदों ने, सिंपल, वो नॉलेज हो गया। अब एक्सपर्टी कहां जाके हो जाएगी। एक्सपर्टी जब नेट क्वालिफाई कर लेगा वो, उसमें अंदर एबिलिटी आ गई। और अब एक्सपर्ट कैसे बन जाएगा, व्हेन ही इज टीचिंग और वर्किंग ऑन हिज or her respective subject. Now, I'm not talking about sociology only, all the subjects, वो common interest होता है सबके लिए common test होता है। फर्स्ट पेपर कॉमन होता है, सेकेंड पेपर में आपको सब्जेक्टिव होना होता है। तो जिस सब्जेक्ट के आप हैं उस सब्जेक्ट का एक्सपर्टीज जब आपके पास हो जाएगी, only then you will be doing many things at a time,
और जब वो सारी चीजों को आप करोगे तो उन सारी चीजों की वजह से फिर चीजें क्या हो जाएंगी, सारी की सारी बदलती हैं। Then last one is this referent power. Referent power जो होती है, that is based on identification of individual faith in a leader. In faith in a leader, यहाँ विश्वास की बात की जाती है, विश्वास एक पर्टिकुलर लीडर के ऊपर। अब faith in a leader who hold very high esteem, जिसका कि सम्मान बहुत ऊपर लेवल का हो, और साथ में admired mostly by his or her subordinates, जो उसके फॉलोअर्स हैं, subordinates and followers, subordinates हैं जो फॉलोअर्स हैं, वो उसको क्या करें, एडमायर करें, उसकी तारीफ करें। तो इस तरह की जो पावर होगी, that is being held by some political leader or some spiritual leader, that may be some religious leader, that may be some academic leader or leadership particular. And when the identification of one individual's faith, आप शब्द क्या रहेगा, identification, it refers, referent power refer to identification of faith a leader, faith on a leader, identification of individuals faith on a leader. तो इसमें सिंपल शब्दों में क्या हो जाएगा, जैसे आज बात करें हम इस डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करें तो इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो उसमें देखने की कोशिश करें तो हमारा जो है, हमारी वोट डेमोक्रेसी है, फ्रेंचाइज डेमोक्रेसी है, निर्वाचन पर आधारित है पूरी तरह से। उसमें मैक्सिमम सीट्स किसके पास आती हैं, आइदर इन सेंटर और इन स्टेट और इन इवन इन दिस लोकल अर्बन बॉडीज, छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक एक जैसा सिस्टम हमारा रन होता है। और उस सिस्टम में कितनी सीट्स मैक्सिमम वहां लिखा हुआ है कि 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, 1/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, अलग अलग उस पे। तो किसके पास 1/3 मेजोरिटी है, 2/3 मेजोरिटी है, ओनली देन only that person is creating or forming the गवर्नमेंट फॉर्म करेगा वो, और जब गवर्नमेंट फॉर्म करेगा इट मींस we are following the person who is heading that very party, और जो पार्टी को हेड कर रहा है, और उसके पास कोई ना कोई ऐसी एबिलिटी है, कोई ना कोई ऐसी एबिलिटी है जो कि उन लोगों में जो फॉलोअर्स है उनके, उनमें फेथ जताती है, विश्वास जताती है। और जब विश्वास जताती है तो विश्वास जताने के बाद लोग उन पर विश्वास करते हैं और लोग उनको वोट देते हैं। दैट इज नोन एज रेफरेंट पावर। तो ये 5 तरह की पावर्स के सोर्सेज हैं जो हमने आपसे बात की। रिपीट कर रहा हूं, लेजिटिमेट, कोरेसिव, रिवार्ड, एक्सपर्ट एंड रेफरेंट पावर। तो ये 5 तरह के सोर्सेज हैं जहां से पावर जो है वो ड्रॉ होती है। और फिर ये जो मैक्स वेबर हैं वो आगे 3 तरह के पावर की यहाँ बात करते हैं। लेजिटिमेट पावर की बात करेंगे ये फिर उसके बाद एक ट्रेडिशनल पावर की बात करेंगे और एक कॉस्मेटिक पावर की बात करेंगे। ऊपर उसको हम लेंगे अथॉरिटी के साथ, क्योंकि दोनों जो है वो इंटरमिक्स्ड हैं, दोनों कॉन्सेप्ट। पावर जो होती है दैट इज इंडिविजुअल, और लेजिटिमाइज्ड फॉर्म ऑफ पावर इज अथॉरिटी। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, लेजिटिमाइज्ड फॉर्म ऑफ पावर इज अथॉरिटी। लेजिटिमाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेजिटिमाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इफ आई डू हैव अ पावर टू ड्राइव माय व्हीकल, दैट इज माय पावर, बट इफ दैट पावर इज बीइंग एक्सेप्टेड by any institution or any personal at any personal level, so जब वो मुझे अपनी गाड़ी चलाने के लिए ऑथराइज करेंगे और साथ में महीना किस तरह से मिलेगा, क्या क्या मेरे प्रिविलेजेस रहेंगे, क्या मेरे ड्यूटी आवर रहेंगे, तो वो दैट इट मींस कि I am getting some authority to drive the vehicle of someone else. If I've been driving a vehicle of my own, that is my power, that is my power. But if I'm driving vehicle of someone else in a legitimized way, then it will be authority. HRTC का ड्राइवर बन जाता हूँ और किसी और डीसी ऑफिस में ड्राइवर बन जाता हूँ, तो वो जो है मैं डीसी साहब का ड्राइवर हूँ। सो इस तरह से जो सारी की सारा जो ये पावर एंड अथॉरिटी चलता है। सो नाउ वी आर शिफ्टिंग टू द कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटी, जो इससे जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने पहले बात की, authority is nothing but it is legalized form of power. तो जब वो ये लैटिन वर्ड ऑटोरिटस से निकला हुआ, ऑटोरिटस, AUTORITS
RITAS, autoritas से निकला हुआ है, which means right to exercise, which means right to exercise power given by state, which means right to exercise power given by state, power given by state in, अब इसमें क्या, इस कब होगा, इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट की बात की जाएगी तो स्टेट ने जो हमें पावर दी है एक्सरसाइज करने के लिए, वो उसमें रहेगा राइट टू एक्सरसाइज पावर होगा। और उसके बाद जिसमें क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट है, जज हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, हम लोग हैं, एनी 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 वन हुसोएवर इज देयर हु इज वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट, उसको जो पावर मिलेगी, रादर जो अथॉरिटी मिलेगी, वो वहां रहेगा। और एकेडमिक नॉलेज ऑफ एन एरिया, एकेडमिक नॉलेज ऑफ एन एरिया, सपोज करिए आई एम अथॉरिटी इन सोशियोलॉजी, आई कैन टीच सोशियोलॉजी, आई कैन राइट इन सोशियोलॉजी एंड आई कैन राइट फॉर सोशियोलॉजी, रादर मैं सोशियोलॉजी के लिए कर सकता हूं, दैट्स व्हाई आई एम अथॉरिटी इन सोशियोलॉजी। उसी तरह से और गिवन बाय समवन एल्स बाय मीन कि सोशल इंस्टीट्यूशंस में, सोशल इंस्टीट्यूशन में जैसे हमने जो हेड ऑफ फैमिली है उसको अथॉरिटी दी हुई है कि ही हैज टू रन द हाउस, और मम्मा को या दादी को ये अथॉरिटी दी है कि उन्होंने जो दादू या पापा कमा के लाएंगे अपने पास रखना है और पूरा महीना उस घर को चलाना है। तो वो अथॉरिटी मम्मा या दादी के पास है, फीमेल के पास है, और जबकि कमाने की जो अथॉरिटी है वो जो है मेल के पास है। तो ये सोशल इंस्टीट्यूशंस में, तो जो ये वर्ड अथॉरिटी है, जब ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है तो ये गवर्निंग बॉडी ने जो वो अथॉरिटी प्रोवाइड की है, जो अथॉरिटी प्रोवाइड की है, उसमें राइट टू डू समथिंग बाय द गवर्निंग बॉडी, एंड दैट राइट इज बीइंग डिसेमिनेट किया जाता है, और वो आगे जब दिया जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये अथॉरिटी बनता है। इन गवर्नमेंट सिस्टम की बात करें, द टर्म अथॉरिटी सिंपली मीन्स लीगलाइज फॉर्म ऑफ पावर, जैसे पहले बात कर चुका हूं। यहाँ पर पावर से थोड़ा सा यहाँ इन जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ आपको समझाने की कोशिश करूंगा, यही लाइन समझाएंगे फिर इसको हम बंद करेंगे। तो पावर जो होती है, इट इज एन एबिलिटी, सिंपल शब्दों में आपने याद के रखना है, पावर इज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस समवन टू डू समथिंग दैट ही और शी वुड नॉट वांट टू डू। ऐसा कोई भी काम जो कि वो करना नहीं चाहता है या नहीं कर सकता है, वो काम करवाना, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस समबडी, किसी को भी प्रभावित करने की यहां बात होगी, दैट इज पावर। It is power. I'm repeating again. The power is an ability to influence somebody to do something which he would not want to do. जो वो नहीं करना चाहता, उसको करने के लिए उसे मजबूर करने की जो योग्यता है, उसे हम पावर कहते हैं। जबकि अथॉरिटी क्या होगा, अथॉरिटी, अब ध्यान से सुनना, अथॉरिटी रेफर टू क्लेम ऑफ लेजिटिमेसी, अथॉरिटी रेफर टू क्लेम ऑफ लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी माने वैधानिकता, वैधता कितनी है, जो ऑर्डर दे रहा है उसकी वैधता कितनी है। क्लेम रेफर टू क्लेम ऑफ लेजिटिमेसी, द जस्टिफिकेशन और राइट टू एक्सरसाइज दैट पावर। नंबर 1 लेजिटिमेसी, नंबर 2 जस्टिफिकेशन, नंबर 3 राइट टू एक्सरसाइज दैट पावर। जिस पावर की हमने ऊपर बात की, जो कि एबिलिटी है, उसका जस्टिफिकेशन क्या है, किसने उसको दिया है, उस पावर को यूज करने का अधिकार उसे किसने दिया, जब अधिकार किसने दिया तो वो वैधता क्या, उसकी लेजिटिमेसी क्या है। लेजिटिमेसी नंबर 1, नंबर 2 जस्टिफिकेशन, एंड नंबर 3 राइट टू एक्सरसाइज दैट पावर। क्लियर, राइट टू एक्सरसाइज दैट पावर, नंबर 1, नंबर 2 जस्टिफिकेशन, एंड नंबर 3 लेजिटिमेसी क्या है उस पावर की, जो कि ऑर्डर दिया है, जो एबिलिटी, पावर में क्या था, इट इज एबिलिटी योग्यता है। योग्यता किसके लिए थी, टू इन्फ्लुएंस समबडी, योग्यता किसके लिए, टू इन्फ्लुएंस समबडी टू डू व्हिच ही डोंट वांट टू डू, रादर जो नहीं कर सकता या नहीं करना चाहता, उसके बावजूद भी वो उसे करने के लिए मजबूर करना, ऐसी उसके अंदर योग्यता। अब प्रश्न ये उठता है, अथॉरिटी कब बनेगा, ये अथॉरिटी तब बनेगा
कि what is the legitimacy of that order which has been given by someone by virtue of his ability, और उसकी योग्यता के मुताबिक उसने जो ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर को लेजिटिमेसी क्या, उसकी वैधता कितनी है, जस्टिफिकेशन क्या है, और साथ में उसे राइट टू एक्सरसाइज उसे किसने दिया, उसको आरोपित करने का अधिकार उसको किसने दिया। तो ये तीनों चीजें जो हैं जब हम देखते हैं तो वो अथॉरिटी बनता है। तो उत्तर इसका होगा कि उत्तर इसका ये होगा सिंपल शब्दों में कि देयर इज समवन अथॉरिटी में खास करके सम इंस्टीट्यूशन जो कि उसे ऐसी एबिलिटी को यूज करने का अधिकार देता है, ऐसा एबिलिटी को यूज करने का अधिकार देता है। छोटा सा एग्जांपल है कि जैसे वह भीड़ हो गई इकट्ठी और किसी ने क्या कर दिया, कोई गलत काम कर दिया, तो भीड़ क्या करेगी, इकट्ठी होकर मॉब लिंचिंग कर देगी। लिंचिंग कर देगी मतलब उसको मार देगी, खुद ही सजा दे देगी, खुद ही सजा दे देगी। तो ये जो भीड़ थी उसकी वो पावर थी, परंतु जो कानून को मानने वाले होंगे, जो अथॉरिटी को मानने वाले होंगे, वो सिंपल शब्दों में बोलेंगे दोज हु बिलीव्स इन रूल ऑफ पावर, सॉरी रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ पे जो विश्वास करेंगे वो बोलेंगे कि सजा देने का अधिकार भीड़ को नहीं है, सजा देने का अधिकार किसको है, कानून को है। कानून में जेल में उसको डालेंगे, और जो क्रिमिनल एक्टिविटी जो भी उसको हुई है, जो उसने की है, उसके लिए कानून के तहत, भारतीय संविधान के तहत उसको सजा दी जाएगी। तो ये कहने का, ये अथॉरिटी हो गया पहले वाला, सेकंड वाला पार्ट, और पहले वाला पार्ट जो पावर है। इस तरह से सोशल साइंसेस में अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो सोशल साइंसेस में जो है वो अलग अलग तरह से कई सब्जेक्ट हैं जिसमें रिसर्च करते हुए वैरायटी ऑफ इंपेरिकल सेटिंग में हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने पहले बात की कि इंपेरिकल सेटिंग में फैमिली, पेरेंटल अथॉरिटी, जैसे मैंने पहले बात की कि पापा के पास पेरेंटल अथॉरिटी है, मम्मा के पास घर चलाना है, पापा ने घर के लिए कमा के लाना है। स्मॉल ग्रुप है, इनफॉर्मल अथॉरिटी ऑफ लीडरशिप है, स्मॉल ग्रुप पंचायत लेवल पे, वार्ड मेंबर से लेके प्रधान तक। उसके बाद इमीडिएट ऑर्गेनाइजेशन सच है, स्कूल है, चर्च है, आर्मी है, इंडस्ट्री है, ब्यूरोक्रेसी है, ऑर्गेनाइजेशनल एंड ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी, सरकार की तरफ से अथॉरिटी मिलती है। सोसाइटी वाइड इंक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन है, रेंजिंग फ्रॉम मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइबल सोसाइटी टू मॉडर्न नेशनल स्टेट, यहाँ तक सारे के सारे ये अथॉरिटी, ये कौन सी अथॉरिटी होगी, पॉलिटिकल अथॉरिटी होगी। तो ये इस तरह से कई चीजें जो हैं वो इस तरह से चलती हैं। और कार्ल मार्क्स ने जो कहा था, इकोनॉमिक रिलेशन की उन्होंने बात की थी, वेबर ने बोला कि पावर इज merely not coming from economic relation, power is also coming from social relation। सोशल रिलेशन जो है वहां से पावर आती है, और पावर का सोशल बेस होता है, सामाजिक बेस होता है, क्योंकि सामाजिक बेस में फिर स्टीम जुड़ती है, सम्मान जुड़ता है, रिवार्ड। ये जो हमने बात की पीछे रेफरेंट की, जो बात की 5 सोर्सेज की बात की, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी से आते हैं, मात्र पैसे से नहीं आते। पैसा जो है वो ओसामा बिन लादेन के पास भी पैसा है, काला धन जिसके पास है उसकी उतनी कीमत नहीं होगी, उतनी इज्जत नहीं होगी जितना कि सफेद धन वाले के पास होगी। रादर एक टीचर जो है ही इज, और रादर एन ऑनेस्ट पर्सन इज क्या बोलते हैं, बीइंग रिगार्डेड most as compared to the person who is having many things which should not be. With this, thank you very much.